Hi friends, today we are going to discuss about SP chapter number 2, sources of finance. Okay, 12th commerce, new syllabus, secretarial practice SP chapter number 2, sources of finance. In this chapter, it's all about how a joint stock company or a public company can collect its finance, its sources of finance. Okay, major part of this chapter deals with equity shares and preference shares. So we are going to typically do equity shares and preference shares perfectly because that is the main part of this chapter. Okay, so we are going to concentrate on equity shares and preference shares. So all topic is about equity shares and preference shares. So let us see. As you can see here, the textbook of your SP, the page is displayed, and the below on the left side of the corner you can see the stock market, stock exchange. Okay, Bombay Stock Exchange, BSE, as you can identify it. So stock exchange lists all the public company shares. Okay, if a public company, joint stock company, wants major part of its capital from public, then it has to issue what? Equity shares in the market. And after issuing equity shares, they are listed in Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, all the stock exchanges all over India. And general public can trade its shares on the stock market, or they can do it in their demat account online every day at their home whenever the market is open. Okay, so we'll discuss about what are equity shares and preference shares. So as you can see here, stocks and shares. First of all, we are going to see that a joint stock company, JSC as we call it in short, it's a public company which can collect huge amount of capital from various sources. Okay, first of all, make it clear there are two types of company: public company and private company. Okay, public company, as we say, joint stock company, public company, then it means it has taken money from public. Okay, it has issued shares in general public. That's why it is called as public company. And the difference between public and private is only this: private company cannot issue shares to general public. They can collect their capital only internally, okay, privately. And public company can issue its shares to general public. Okay, so that is the major difference. The majority of capital collected by a public company is from owned capital resources, which means by issue of shares, that is equity shares and preference shares. Okay, that's why this capital is called as owned capital. Here we are going to discuss about equity shares and preference shares majorly because that is the main part of this chapter. As you can see here, the bifurcation, these are the basic sources of finance for a company. You can see here the bifurcation. Sources of finance is bifurcated into 2 points: owned capital and borrowed capital. Owned capital, you have shares and retained earnings. Shares, under shares you have equity shares and preference shares. These are the both main things which are going to discuss. Retained earning is nothing but your profits which you have retained, which you have kept aside. Okay, you have kept reserves, that also you can use as a funding for your company. So this is called as owned capital because this is your own capital. Now to the right hand side, borrowed capital. Now what is borrowed capital? If you borrow some loan from bank, that becomes a borrowed capital. So borrowed capital ke andar debentures, public deposits, bonds, as you can see here, ADR, GDR. Okay, this is a new term for you. ADR means American Depository Receipts. GDR means Global Depository Receipts. That will be coming to you in the later part of this chapter. Institutions, financial institutions, trade credit, etc., etc. So from wherever the sources, the company can collect finance. Okay, and the major difference between the two sources is that owned capital, you do not have to give, you don't have to pay interest or something to the equity shareholders or the preference shareholders. You have to just pay the dividend or the interest. Okay, but in the case of borrowed capital, you have to pay higher interest rates because banks give you loan at a higher interest rate. So you have to give them higher rate of interest. Okay, so this is the basic difference between owned capital and borrowed capital. So first of all, now we are going to see shares. Okay, here we have equity shares and preference shares. Equity shares are bifurcated into just two types: equity share with voting rights and equity shares with preferential differential voting rights. Preference shares are divided into 8 parts, 8 types. Okay, there are 8 types of preference shares which we are going to discuss later on. That is also part of your short note: types of the preference shares, or they can ask you as kinds of preference shares. Okay, so you have to write all these 8 types of preference shares. We'll discuss it later. Let us see the major meaning of equity shares. What is equity shares? Okay, so equity shares are those shares which are ordinary shares. Okay,
Company Act defines equity shares as those shares which are not preference shares. Simple definition है, you have to just write equity shares are those shares which are not preference shares. Okay, so simple है. Equity shares कौन से shares होते हैं जो preference shares नहीं होते हैं. So let us see equity shares हम लोग ने देखा. अभी let us see what are preference shares. Okay, preference shares, as the name indicates, these shares have certain preferential rights distinct from what the equity shares have. Okay, so they have some preference over the equity shares, that's why they are called as preference shares. Okay, so preference shares को preference मिलता है equity shares के ऊपर, इसके लिए उनको नाम भी क्या दिया है, preference shares. दोनों में फर्क क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा. Now let us see one by one what are the features of equity shares. First of all, let us see what are the features of equity shares. Let us see the features of equity shares one by one. Permanent capital. First major feature of equity share is what? Permanent capital. It stays with the company till the life of the company, until it gets wind off or until it repays the share capital to the shareholders. Okay, so it is a permanent capital which is going to be with the company for long. Okay, so the capital remains for with the company for longer period. Fluctuating dividend. Dividend. Now equity shareholders को क्या मिलता है सामने? एक डिविडेंड. ओके, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई परचेज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स RIL, ओके, इफ द शेयर प्राइस टुडे इज 1700 एंड आई परचेज वन शेयर फॉर 1700 और मैंने वो लेके रख दिया, समझो 2 साल हो गया, 2 साल के बाद वो शेयर की प्राइस 1700 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट मुझे डिविडेंड मिलेगा. वो भी कब मिलेगा? अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो ही. कंपनी प्रॉफिट में होगी तो ही डिविडेंड देगी. डिविडेंड इज गिवन ओनली व्हेन द कंपनी इज इन प्रॉफिट, अदरवाइज दे कैन नॉट गिव डिविडेंड. ओके, एंड द शेयर होल्डर्स कैन नॉट डिमांड डिविडेंड अनलेस एंड अंटिल द कंपनी इज इन प्रॉफिट. सो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है. 1 साल मिला, 2 साल नहीं मिलेगा, तीसरे साल मिला, दूसरे 5 साल नहीं मिलेगा. सो ये फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है. इसका कोई फिक्स स्केल नहीं होता है. नॉट लाइक प्रेफरेंस शेयर्स. फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, द डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग. ओके, एक समान नहीं होता है. उसके बाद थर्ड फीचर, राइट्स. उनके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, कुछ हक होते हैं. ठीक है, लेट अस सी वन बाय वन. राइट्स में 4 राइट्स है यहाँ पे दिए हुए. राइट टू वोट. नो वोट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है वो वाला वोट नहीं. वोटिंग इन द एनुअल जनरल मीटिंग्स. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, वहाँ वोटिंग कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, अकाउंट्स चेक कर सकता है, एवरीथिंग. ओके, सो वोटिंग राइट्स. राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स. अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही हैज़ द राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स इन द नेम ऑफ डिविडेंड. सी, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स. वो जब चाहे तब बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है. ही कैन राइट एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी एंड ही कैन डिमांड कि आई वांट टू सी द ट्रायल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंपनी फॉर द लास्ट ईयर. दे कैन गिव यू, दे कैन नॉट से नो बिकॉज यू आर अ इक्विटी शेयर होल्डर. डी, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. मेरे पास जो शेयर्स है मेरे नाम पे, ओके, वो शेयर्स मैं विलिंगली किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, मुझे इसमें कोई रोक नहीं सकता है. तो ये राइट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो वो यूज करता है. ओके, सो दीज आर ऑल द राइट्स. ये सारे राइट्स प्रेफरेंस शेयर्स वाले के पास नहीं होते हैं. ये सिर्फ किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं. नो प्रेफरेंशियल राइट्स. जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स होते हैं वैसे इसको कोई राइट नहीं होता है. ओके, सो दे डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट्स जस्ट लाइक द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. उनके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर जैसा राइट नहीं होते हैं. उनके पास जो राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने चाहिए वही होते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई राइट्स नहीं होता है. कंट्रोलिंग पावर. वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं बिकॉज एज यू हैव सीन अबाउ, राइट्स के अंदर ही आपने देखा कि उनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं. दे कैन कंट्रोल द कंपनी बिकॉज वो सब कुछ इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बुक्स चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. सो इन द सेंस दे कैन कंट्रोल द कंपनी. और उनके पास जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होता है. उसके बाद रिस्क. सबसे रिस्की कैपिटल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं. ओके, वो उनके पास जब वो शेयर लेते हैं तब वो ये जान के नहीं लेते कि इस शेयर का भाव कल बढ़ेगा या कम होगा. मैंने आज शेयर ले लिया, हो सकता है कल उसका दाम आधा हो जाए, 0 हो जाए, होता है. ओके, आपका 1 लाख आपका 1 करोड़ भी हो सकता है और आपका 1 लाख 0 भी हो सकता है. तो रिस्क है. ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रिस्क होता है. रेसिडुअल क्लेमेंट्स. लास्ट क्लेमेंट्स का मतलब क्या होता है? दे हैव टू वेट
वेट करना पड़ेगा उनको, किसके लिए? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, बाद में कुछ बचा तो आपको मिलेगा। कब? जब कंपनी बंद हो गई या कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब रेसिडुअल क्लेमेंट आपको गिना जाएगा। चार्ज ऑन एसेट्स, जो एसेट्स होते हैं कंपनी के, उनके ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज ऑन एसेट्स। ओके, यानी अगर कंपनी को कुछ भारी नुकसान हो जाता है तो एसेट्स बेच के वो पैसा किसको चुकाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स वाले को नहीं। ओके, बोनस इश्यू, बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, दो चीजें होती है कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, एक तो बोनस और एक तो राइट इश्यू। बोनस इश्यू के अंदर क्या डिक्लेयर करेगी कंपनी? फॉर एग्जांपल कंपनी डिक्लेयर करेगी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कि वी हैव डिक्लेयर्ड 2:1 बोनस शेयर। 2:1 का मतलब क्या होता है? रेशियो। 2:1 का मतलब होता है जिस आदमी के पास 2 शेयर्स है उसको 1 शेयर बोनस में मिलेगा, फ्री मिलेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज बोनस इश्यू, फ्री मिलता है। राइट इश्यू में थोड़ा फर्क क्या होता है? राइट इश्यू में पहला अधिकार आपको दिया जाता है, राइट, आपका अधिकार, कि हम आपको पहले ऑफर कर रहे हैं कम प्राइस में, मार्केट से कम प्राइस में हम आपको दे रहे हैं, फ्री नहीं दे रहे, मार्केट से कम प्राइस में दे रहे हैं, उसमें भी आपका फायदा है, अगर आपको चाहिए तो लो, नहीं तो हम किसी और को देते हैं। तो ये दोनों राइट्स, बोनस और राइट इश्यू, ये दोनों राइट्स किसको मिलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलते हैं। फेस वैल्यू, जनरली जो फेस वैल्यू होती है एक शेयर की, वो फेस वैल्यू कैसी होती है? 10 रुपीज पर शेयर की होती है, ₹1 और 10 फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू हो सकती है 1, 2 और 10 इक्विटी शेयर्स की। ओके, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बहुत डिफरेंस होती है। जब कंपनी लॉन्च होती है नहीं तब उनका फेस वैल्यू 1, 2, 10 ऐसा होता है, ₹1, ₹2, ₹10। लेकिन वो कंपनी अगर अच्छी चलती है तो उसका प्राइस हजारों में हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो आप गूगल पे कभी सर्च करके देखना, MRF कंपनी जो है, MRF, उसका एक शेयर, सिंगल शेयर, उसकी कीमत अराउंड 65,000 के ऊपर है आज की तारीख में। ओके, चेंज हो सकता है, आप डेटा कब का देख रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज की तारीख में जुलाई 2020 का अगर डेटा देखोगे तो आपको उस एक शेयर की प्राइस 65,000 या 70,000 के आसपास दिखेगी। तो आप सोच सकते हो ₹1 का शेयर जब किसी ने लिया होगा, ₹10 का शेयर किसी ने लिया होगा, आज उसकी वैल्यू कितनी ग्रो हुई है। ओके, सो फेस वैल्यू इज डिफरेंट, मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट। तो ये सारी चीजें इक्विटी शेयर्स के बारे में थी। प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर डिविडेंड के मामले में उनको क्या होता है? प्रेफरेंस होता है, दे हैव बीन गिवन प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड, यानी आपको डिविडेंड पहले दिया जाएगा। उनको एक्जैक्टली डिविडेंड वर्ड नहीं बोलते हैं, डिविडेंड नहीं मिलता है उनको, पहले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ओके, डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, पहले इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, पहले किसको मिलेगा? इनको मिलेगा, बाद में कुछ बचा तो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स वाले को, सॉरी इक्विटी शेयर्स वाले को मिलेगा। इसके लिए आप देख सकते हो नंबर 1 पोजीशन पे कौन रहेगा कंपनी के अंदर? प्रेफरेंस शेयर्स। इसके लिए तो उनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है, बिकॉज दे हैव बीन गिवन प्रेफरेंस। सेकंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब कैपिटल पे करने की बात आती है तब सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट खड़ा होगा, आपने देखा ना पॉइंट, लास्ट क्लेमेंट, रेसिडुअल क्लेमेंट। लेकिन यहां पे कौन होगा? सबसे पहले कौन होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिक्स्ड रिटर्न्स, इक्विटी शेयर वाले को कभी फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, उनके शेयर की प्राइस बढ़ेगी, कम होगी, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं, रिस्की होता है। बट यहाँ पे उनको जो रिटर्न्स मिलने वाला है वो कैसा होगा? फिक्स्ड होगा। हर महीने या हर साल उनको पता है कि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो मुझे 8%, 10%, जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर लिखा होगा परसेंटेज, वो उनको मिलने ही वाला है। ठीक है, उतना कंपनी को देना ही पड़ेगा। सो दे हैव बीन गिविंग फिक्स रिटर्न्स। नेचर ऑफ कैपिटल, उनका कैपिटल कैसा होता है? टेम्पररी। जैसे हम लोग ने इक्विटी शेयर्स में देखा, कैपिटल कैसा था? परमानेंट, इट इज गोइंग टू स्टे विथ लॉन्गर टाइम विद द कंपनी, इक्विटी शेयर। बट ये जो प्रेफरेंस शेयर्स वाला कैपिटल होता है वो कैसा होता है? इट इज टेम्पररी। कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफरेंस शेयर्स बेच सकती है, उसके बाद उसको रीपे कर सकती है, तो टेम्पररी बेसिस पे ले सकती है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इसकी आप देख सकते हो, ग्राफ में भी देख सकते हो, मार्केट वैल्यू थोड़ी कम होती है। ओके, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स की ज्यादा हो सकती है, बट प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू कभी बढ़ेगी ही नहीं, उसकी जो वैल्यू है वही रहेगी। ओके, इसके लिए तो आपको रिटर्न्स फिक्स दे रहे हो। वोटिंग राइट्स, आपको कोई वोट करने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर्स वाले को नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर को पूरा राइट्स होता है, मीटिंग में जाना, मीटिंग अटेंड करना, वोटिंग करना, पोल करना, सब कुछ करना। बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स वाले को वोटिंग राइट्स है ही नहीं। ओके, उनके पास नो वोटिंग राइट्स। इनका कैपिटल कैसा है? लेस रिस्की।
ओके, रिस्क बहुत कम है। इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल कैसा होता है? वेरी रिस्की। इनका कैसा है? लेस रिस्की। फेस वैल्यू, इनकी फेस वैल्यू कैसी होती है? अराउंड ₹100 पर शेयर। इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू हम लोग ने क्या देखा? 1, 2 या 10। इनकी कितनी होती है? 100 पर शेयर। लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है। इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, इनकी सेम रहेगी। बोनस और राइट इश्यू मिलेगा क्या इनको? नहीं मिलेगा। ओके, बोनस इश्यू भी नहीं मिलेगा, राइट इश्यू भी नहीं मिलेगा। इनका इन्वेस्टर कैसा होता है? एकदम सेफ खेलने वाला। जो एकदम सेफ खेलने वाला खिलाड़ी होगा वही इसमें इन्वेस्ट करेगा। ओके, सो इसका इन्वेस्टर कौन होता है? जो सेफ खेलता है, कीप सेफ। ओके, सेफली अगर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा, नहीं तो इक्विटी शेयर खरीदेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने जो देखा, दैट वाज ऑल अबाउट इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, यही चीज़ हम लोग को पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको इसका डिस्टिंग्विश भी आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।